चैप्टर नंबर 12 है न्यूट्रिशन का। इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स इन देयर आयनिक फॉर्म as well as found in the soil water. The plants in most common nutrient deficiencies are magnesium, nitrogen and phosphorus. Magnesium, nitrogen and phosphorus मैंने symbols लिखे हुए हैं, आप चाहे पूरा name लिख दें. A plant requires water for holding itself together. Most of the organic material in the plant is carbohydrates. Chlorosis is usually caused by insufficient magnesium and nitrogen. Sixth है, in pitcher plant the trapped insects are decomposed by bacteria. The structure in the mouth that prevents food from entering the nasal cavities are palate. Blank number 7. The stomach functions to store food and यहाँ से काट दीजिएगा, to store food and its digestion. Ninth है, earthworm is the commonest example of detritivore. Pancreas produce pancreatic juice which stimulates the conversion of glycogen to glucose. पैंक्रेटिक जूस और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की जो है वो ब्लैंक है. देन वॉमिटिंग अकर्स ड्यू टू एंटीपेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. एंटीपेरिस्टाल्टिक मीन नीचे से ऊपर आना, तो उसमें वॉमिटिंग हो जाती है. देन क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यूज के बारे में. इंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. अ प्लांट रिक्वायर्स नाइट्रोजन एंड सल्फर फॉर इट्स डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी. Then plant requires potassium for option C, opening and closing of stomata. Carnivorous plants live in soil that are deficient in nitrogen. Most vitamins function as option A, catalyst. Digestion in the hydra and planaria takes place within its gastrovascular cavity. Most vitamins function as catalyst. Digestion in hydra and planaria takes place within its gastrovascular cavity. ये option C है. अच्छा, इसके बाद है mucus in saliva is made of option B, glycoproteins. The structure in the mouth that prevents food from entering the nasal cavity is the soft palate. यहाँ पे palate जो है ना, इसके spellings, this will be the spellings. अच्छा, इसके बाद है a mammalian herbivore has option B, flatter teeth. Then a carnivore. Many humans become ill from consuming milk and milk products because they lack option C, lactase. Lactase enzyme है जो कि lactose की break down करता है. Which of the following animal has no need for a gallbladder? Option D, goat. Goat में gallbladder नहीं होता. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चंस है. First short question है about what is the advantage of a digestive tract as compared with a digestive cavity. Digestive tract की importance क्या है? इसमें आप लिख सकते हैं कि absorption जो है वो ज़्यादा होती है, इसको आप elaborate कर सकते हैं. enzymes secretion होती है for the breakdown, और absorption ज़्यादा है मतलब surface area भी ज़्यादा होता है for the absorption. तो इन points को आप elaborate कर सकते हैं. सेकेंड है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लिवर. इसमें है डिटॉक्सिफिकेशन. वैसे ये जो है मैंने बताए थे आपको, फ्लो शीट में भी करवाए थे. डिटॉक्सिफिकेशन है, रप्चर ऑफ आरबीसीज, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होगा. फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, या इसके लिए वर्ड है emulsification of fats. Emulsification of fats, और सबसे important production of bile. Third question है what measures should be taken to avoid food poisoning. वही बात है कि आप हाइजीन फूड लें, फूड जो फ्रोज़न फूड है उसको आप यूज़ ना करें, और प्रॉपरली कुक्ड फूड जो है उसको आप यूज़ करें. लिख देते हैं, इसको भी लिख देती हूँ मैं कि हाइजेनिक फूड, नो फ्रोजन फूड, और प्रॉपरली कुक्ड फूड आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं. कैन वी गेट अलॉन्ग विदाउट लार्ज इंटेस्टाइन, इफ नॉट वाई? एब्जॉर्प्शन जो आपसे क्वेश्चन ही किया जा रहा है कि अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से निकाल दें तो कैन वी सर्वाइव. तो इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड
एंड स्टोरेज इन फूड मूवमेंट वोंट टेक प्लेस। इसमें चूँकि ज़्यादा वैसे अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्प्शन होती है फूड की, तो आप इसमें लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ फूड। मूवमेंट ऑफ फूड कहाँ की? टूवर्ड्स द रेक्टम। रेक्टम में स्टोर होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या एनएस वोंट टेक प्लेस। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा वैसे ये एक्सटेंसिव है नहीं, क्योंकि इसने ज़्यादातर जो है वो लॉजिक ही पूछा हुआ है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन प्लांट न्यूट्रिशन। ये आपका आ जाएगा पेज 234 और 235 पे जो है डेफिनेशन भी है न्यूट्रिशन की, और डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं जो प्लांट न्यूट्रिशन में मौजूद है, उनको भी डिस्कस किया हुआ है रोल उनका। और डिस्टिंग्विश बिटवीन सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड्स ऑफ लाइफ, दिस विल बी ऑन पेज 235। डिफरेंस ट्रेन आपको 235 पे मिलेगा। डिस्क्राइब इट्स मेथड, किसी भी आपने एक पैरासिटिक प्लांट का नाम लेना है। पैरासिटिक प्लांट में यहाँ पे जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वगैरह जो है ये आ सकते हैं। डिस्क्राइब इट्स मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेनिंग वाई नॉर्मल न्यूट्रिशन इज़ नॉट पॉसिबल। आपने कोई मेथड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक्सप्लेन करना है, वो वहीं पे लिखा हुआ है। नॉर्मल न्यूट्रिशन भी जो है वहाँ पे आप उसको मतलब वहाँ पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। देन व्हाट आर हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दैट यू कैन फाइंड ऑन पेज 235 और पेज 236, 237, 238 और 239। इन पे मौजूद जो सिर्फ नेम्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने, डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आप सुन लीजिए, उसको आप एलाबोरेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ये हो सकते हैं दैट इन ऑर्गेनिजम्स को अपना खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब फूड पर फीड कर रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि एडवांटेज मतलब बेसिक एडवांटेज यही होता है कि इनको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, फूड ऑलरेडी एब्जॉर्ब फॉर्म में इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मौजूद होता है। डिसएडवांटेज इसका यही होगा दैट दीज आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज़ कॉज करते हैं। और डिजीज़ जो है पैरासिटिक मोड में वैसे डिजीज़ ही आएगा, दैट दे आर द पैथोजेंस बेसिकली। उसके बाद है वाई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नेसेसरी, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू मील कंटेनिंग फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, व्हाट इज इट्स व्हेन इट इज़ इन द स्टमक ऑफ अ मैन। डाइजेशन जो है वो नेसेसरी क्यों है? फॉर द एब्जॉर्प्शन, वेरी सिंपल, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन के बाद ताकि एनर्जी मिले। और क्या पूछा हुआ है? व्हाट हैपन्स टू अ मील कंटेनिंग फैट्स, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंपलर मोनोसेक्राइड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होने के बाद या डायसेक्राइड्स में कन्वर्ट होने के बाद डिफरेंट जगह पे एज एन एनर्जी कंपोनेंट वो यूज़ होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, हाँ जी प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये भी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं। उसी बात है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये वर्ड जो है पूरे चैप्टर में कहीं यूज़ नहीं हुआ है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है द न्यूट्रिशन विच कंसिस्ट ऑफ द 4 स्टेप्स पे जो न्यूट्रिशन बेस करती है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? दीज आर द इंजेशन, सबसे पहले आपका जाएगा इंजेशन, नंबर 1। नंबर 2 है डाइजेशन, नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन, और नंबर 4 है एजिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन एंड एजिमिलेशन आप एक ही कर लें, 4
बनेंगी नहीं, एजिमुलेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन के साथ ही रहेगी. फोर्थ विल बी इजेशन. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू द स्लाइवा, पैंक्रियाज एंड लिवर, आपने इनकी जो डाइजेशन में हेल्प है वो स्टेट करनी है. स्लाइवा पेज 245 246 पे. पैंक्रियाज और लिवर. पैंक्रियाज आपके पास आता है पेज 249 250 पे और लिवर पे पेज 250 पे. साथ आपने जो डायग्राम इनकी बना देनी है. मेगा लेवल डायग्राम होता है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच का पूछा हुआ है. हाँ, कॉकरोच में आपके पास ये है, दिस इज ऑन पेज 244. आपने इसको लेबल भी करना है. 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्टमक. दिस इज ऑन पेज 247 248 एंड 249. ये सारा मैंने हेडिंग्स के साथ फ्लो शीट्स के साथ बनवाया हुआ है. आप चाहे तो उसको अंडर कंसिडरेशन रख सकते हैं, चाहे बुक वाला कर लें. वैसे एक ही चीज़ है, मैंने सिर्फ हेडिंग्स जो है वो बनवाई थी ताकि इजी हो जाए. हाउ डू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ हर्बीवर्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ कार्निवर्स. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हर्बीवर्स में, उसमें ये होता है दैट दे आर हैविंग द एंजाइम सेलुलेज. सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, दिस इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल या सेल वॉल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट. क्योंकि हर्बीवर्स ने जिंदा ही जो है वो घास या पत्तों वगैरह पे रहना होता है, इसलिए उनके जितने भी प्लांट या पत्ते वगैरह जो घास जो भी उनमें सेल वॉल होगी तो उसकी ब्रेकडाउन जो है वो ज़रूरी होती है. कार्निवर्स में ये नहीं होता. और दूसरी बात है कि हर्बीवर्स और कार्निवर्स में, हर्बीवर्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कार्निवर्स. कार्निवर्स में डाइजेस्टिव ट्रैक का सरफेस एरिया ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन साइट्स ज़्यादा है, एंजाइम सिक्रीशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी ब्रेकडाउन होनी होती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, व्हाट प्रिवेंट्स द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड. इसमें जो है वो आप म्यूकस स्टेट कर सकते हैं कि म्यूकस से इसकी सिक्रीशन होती है ताकि चूँकि स्टमक जो है वो इटसेल्फ भी प्रोटीन है तो अपने आप को डाइजेस्ट ना करना शुरू कर दे. तो यू विल राइट कि म्यूकस सिक्रीशन इन द स्टमक. Then what specialized features of your small intestine account for the efficient absorption. उसमें आपके पास विलाय आ जाएगा और माइक्रोविलाय. इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लार्ज सरफेस एरिया विद डायग्राम. उसके बाद है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज. दिस ऑन पेज, ये अगेन वैसे वही रिपीट हुआ है, 249 और 250 पे मौजूद है. 14th क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंट्रोल ओबेसिटी. ओबेसिटी जो है वो पेज 254 पे. आप इसमें से देख सकते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है. कंट्रोल किसका किया जाता है कि आप वो डाइट लें विच इज़ नॉट कोलेस्ट्रॉल रिच, या अवॉइड, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं अवॉइड कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट. ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, इससे आप ओबेसिटी को यानी कि मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं. देन हाउ इज़ गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन रेगुलेटेड. रेगुलेट किस तरह से की जाती है कि जो गैस्ट्रिक जूस मीन स्टमक में जितने भी सिक्रीशंस हैं उसमें HCl भी है, उसमें पेप्सिनोजेन है, पेप्सिन वगैरह. तो ये किस तरह से रेगुलेट होता है कि जब फूड स्टमक में आता है तभी इनकी सिक्रीशन होती है. उसमें डिफरेंट रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो कि इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं. या जिस तरह पेप्सिनोजेन है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सिक्रीट होता है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन एंटर होता है इन द स्टमक तो जो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन होता है वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ रेगुलेटेड.